Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of Organization of Commerce and Management Standard 12th Commerce session number 3 of staffing. In last session I completed importance of staffing and I started some basic information of staffing as a part of human resource management. We differentiate staffing and HRM. As you know that one staffing is a part of HRM. So HRM is a big wide, but staffing is small or we can say limited. Also we differentiate both, and then after I started that 2 points that only information I gave related to the HRM process. The name of this HRM process, that is two process related information, is the concern with manpower planning, and next one, that is concerned with compensation and development of staff. I only give the basic very small information about the HRM. Now let's move to the process of HRM. First one, concern with manpower planning. So whenever HRM is there, human resource, नाम से ही मालूम पड़ता है वो पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ है. As a staffing, recruitment, selection, yeah, sometimes promotion, sometimes we can say transfer. Okay, after retirement schemes are there, so everything is available in staffing. Though staffing includes all these things, somehow manpower planning is required. यानी कि under the human resource management, manpower planning is at the top. See, what is this? What this particular manpower planning? So under first one, to plan for required staff in the organization and increase the staff through new appointments. So through this particular type of the manpower planning, whatever the requirement of the staff for the organization, recruit them, right? And also, if you are in really need, you are recruiting, still availability is there, still the vacancies are there, new and new appointments are required. So you can increase the appointments and you can increase the staff by the giving new appointments. This is the first one. Next one, according to the time and situation, necessary and selective reduction in staff. See, manpower planning or manpower related things are there. So whenever there is a need arise, so you increase the staff, you increase your particular staff with the new appointments. So whenever there is a no need, right? Sometimes it happens okay, on the basis of time, situation, some of the circumstances are there. At that time there is maybe sometimes requirement you have to reduce. You don't want to reduce because they are your invaluable assets, but because you are not financially strong somehow. Nowadays the pandemic is there, आप देख रहे हो, तो ऐसा टाइम पीरियड हो आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, आपका काम ही नहीं है, तो फिर वाई यू आर कीपिंग दैट स्टाफ फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. Just give them holiday, just give them one type of the, you can say कि for shorter different type of the related things जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको कुछ रीज़न बना के आप उसको छुट्टी पे उतार दीजिए या फिर उसको जॉब से रिट्रेंच कर दीजिए, वॉट एवर कोई रीज़न. लेकिन ये प्रॉपर नहीं है. हम बोल सकते हैं कि उसको कोई ना कोई तरीके से कि सिलेक्टिव रिडक्शन कर दो जो ज़रूरी नहीं है वो स्टाफ में. नेक्स्ट वन, appropriate placement of staff. Whenever you appointed staff, give them a proper place. यानी प्लेसमेंट उनको बराबर मिलना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ अच्छा होता है लेकिन उनका जो प्लेसमेंट होता है वो उनकी स्किल या फिर उनके एजुकेशन या एक्सपीरियंस के हिसाब पर नहीं होता है. सो कीप इन माइंड, मेक अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ दोज हु आर इन योर बिजनेस. अच्छी जगह पर उनको रखिए. बी, नेक्स्ट वन रिमेन, to keep the staff constantly active and enhance their knowledge. Sometimes it happens that your staff is working in a good manner, but if they complete their work, okay, they will not try to start the same work again. यानी कि जो उनका काम है वो शुरू नहीं करेंगे. प्रोडक्शन में है तो उनको मालूम है कि हर रोज़ के 50 यूनिट बनाने, 50 यूनिट ख़त्म हो गए, उसके बाद वो अपना 51 यानी 51 जो यूनिट होगा वहाँ से लेकर 100 तक के यूनिट वो फिर से प्रोड्यूस करना शुरू नहीं करेंगे. एक मैंटेलिटी है. लेकिन ये ना करें तो कुछ ऐसा करें कि स्टाफ कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्टिव रहे. कई बार वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो उनकी जो भी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगी. तो देयर मस्ट बी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज एंड दे मस्ट बी एक्टिव ऑलवेज. सो ट्राई टू मेक देम एक्टिव ऑल द टाइम एंड देन एनहेंस देयर नॉलेज और इंक्रीज देयर नॉलेज. तो फिर ये एक्टिविटी जो है, छोटी एक्टिविटी नहीं हो सकती. वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? नॉट ओनली रिलेटेड टू दी वर्क बट ऑल्सो समटाइम्स दे कैन इंक्रीज द वर्क रिलेटेड नॉलेज
अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, प्रोडक्शन में क्या क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नॉलेज इकट्ठा करो, वॉट एवर। सो दिस इज़ द मैन पावर प्लानिंग। ये एक मैन पावर प्लानिंग है। स्टाफ की ज़रूरत हो तो अपॉइंट करो, नहीं ज़रूरत तो सिलेक्टिव, हर कोई स्टाफ को हमें निकालना नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव स्टाफ को ही रिड्यूस करो, उनको अप्रोप्रिएट प्लेस दो और उनको कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखो। कई बार ऐसा होता है कि उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए भी हमें उनको एक्टिव रखना पड़ता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट वन, कंसर्न विथ कंपेंसेशन, यानी कि वॉट एवर दे वर्क दे विल गेट द फाइनेंशियली आउटपुट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, दे मस्ट बी डेवलप। आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टाफ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। द फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ वेन एवर नेसेसरी। हर साल एक बार ऐसी 10, 15, 20 दिन की या फिर 6, 7 दिन की एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उससे जो भी स्टाफ है उनका काम करने का जो जुस्सा है, एंथुजियाज्म है, झील है, वो बढ़े। ओके, ज़रूरत पड़े तभी। हर साल आप दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, राइट। सो मे बी दे विल नॉट अटेंड द पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सो वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग दो उनको, जिससे उसका काम करने का और साथ में प्रोडक्शन रिलेटेड थिंग्स भी बढ़े। सेकेंड वन, टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी वहाँ जब वो काम कर सके ऐसा प्रॉपर एनवायरनमेंट है जो अपने काम के हिसाब से हो वैसा। सो टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू द स्टाफ एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी। तो कई बार ऐसा होता है दे आर एबल टू डू द वर्क लेकिन दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट टू वर्क। अब प्रोडक्शन हाउस है, वो प्रोडक्शन करे, आवाज़ तो आने ही वाली है, लेकिन आवाज़ के साथ उनको थोड़ी सेफ्टी भी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सेफ्टी अंडर द पार्ट ऑफ द अदर थिंग, बट एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि दे कैन ईजिली वर्क। फिर धुआं हो, काम ना हो, राइट, आवाज़ ज़्यादा हो। कई काम ऐसे होते हैं बिना आवाज़ के होने चाहिए और फिर आवाज़ होती है तो वो काम नहीं कर सकते, ऐसा एक एटमॉस्फेयर है। फिर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का जो अवर जवर होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि आवागमन होता है, वो भी होना चाहिए। ये सब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आता है। कई अलग अलग चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट है लंबी। और उसके साथ में हम देखना चाहे तो उनकी जो प्रोफिशिएंसी है, उनके अंदर जो कुछ करने की चाह है, वो प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए। वो इम्प्रूव होने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एज अ मैनेजर कुछ ना कुछ काम वो करते रहते हैं, तो एज अ वर्कर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि दे कैन इंक्रीज देयर वर्क, राइट, दे कैन इंक्रीज देयर वर्क विथ देयर प्रोफिशिएंसी, so they can improve their proficiency. Next one, to give proper compensation and benefits to the staff. See, this is the point where they are working. Against their working, don't worry about that one, they will not get, I am talking about the particular staff. Those who are working, they will get the proper output related to money, related to the salary. But proper compensation is required and some other benefits to the staff. Why this statement is required for the staffing for the human resource management? Because sometimes they are working in a good way, they are giving their 100%, but they are not getting 100%. वो अपना पूरा 100% देते हैं लेकिन उनको सामने 100% नहीं मिलता है इन द सेंस ऑफ द सैलरीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैंडेमिक और अदर थिंग्स। पैंडेमिक में सब रेगुलर हो जाएगा अब पैंडेमिक के बाद, लेकिन जो रेगुलर काम करते हैं उनको जो प्रॉपर उनका कंपनसेशन होना चाहिए फाइनेंशियली, समटाइम्स नॉन फाइनेंशियली भी उनको कई बेनिफिट्स होने चाहिए, वो नहीं मिलते। सो इट इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोसेस के उनको ये प्रॉपर मिलना चाहिए। सीधी भाषाમાં કહું તો જેટલું કામ કરે એટલા પૈસા મળવા જોઈએ, અધરવાઇઝ દે વિલ નોટ વર્ક ઇન અ પ્રોપર વે। એમની એક મેન્ટાલિટી ક્રિએટ થઈ જશે કે ગમે તેટલું કામ કરીશું પૈસા તો નહીં જ મળે, દેન દે વિલ નોટ વર્ક મોર, દે વિલ વર્ક એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, दैट्स ऑल। दे विल नॉट ट्राई टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। अगर आपको एज ए मैनेजमेंट आपको उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, यू हैव टू गिव मोर मनी। अच्छा, अकेला पैसे से कुछ नहीं होता है, उनके काम के हिसाब से तो उनको बोल के दो बिकॉज ऑफ योर वर्क दिस इंक्रीमेंट इज गिवन, बिकॉज ऑफ योर वर्क सो एंड सो इज दैट। इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क देन योर सैलरी विल बी डिक्रीज। ये सब होता है। नेक्स्ट वन, टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द सेम एंड इम्प्लीमेंट देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट करो, रिकॉग्नाइज करो, उसको पहचानो। एज अ मैनेजमेंट, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इसको पहचानो और उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन अ प्रॉपर वे
एंड देन आफ्टर पुट इनटू प्रैक्टिस, कि फिर से वो दोबारा ना हो. So recognize the different type of the problems, so make solution of them, find solutions, and then after solution आने के बाद उसको implement में डाल दो. So this is the two process related points of human resource management. अगर 2 मार्क में लिए आए तो ये लिखना पड़ेगा. पावर जो भी है मैन पावर उसको बढ़ाना चाहिए ज़रूरत हो तो, और दूसरी बात उनको प्रॉपर कंपेंसेशन तो उनका डेवलपमेंट करो. This is the two human resource related process. Now let's move to the some extra information related to this one. According to human resource management, employees are not mere factors of production, but they are more than that. अब ये सेंटेंस कुछ है नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ को आप काम कराओ एज अ लेबर, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर, कैपिटल, इंटरपीरियड के टाइप पर जो लेबर है उसके हिसाब से आप उनको लो, राइट. उतना नहीं है, वो उससे ज़्यादा है. दे आर कंसिडर एज द ह्यूमन एलिमेंट. 1 मार्क क्वेश्चन. ह्यूमन एलिमेंट ये एक कंपोनेंट है, ये एक एलिमेंट है जिसके बगैर यूनिट नहीं चलेगा. जैसे स्टार्टिंग में बोला था सेम यहीं पर वही फॉलो करना है. सो दे आर कंसिडर एज द ह्यूमन एलिमेंट. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड functions are adopted to create stable staff. In second number chapter we discuss what are the different type of the POMs, principle of management. So वो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स है, उनके फंक्शंस है, उनका वर्क है, उनका यूनिट्स का जो भी टारगेट्स है, वो सब मिला के और सबको अडॉप्ट करना है हमें फॉर द और टू क्रिएशन और टू क्रिएट द स्टेबल स्टाफ. अगर स्टाफ आपका टेबल है, वो स्टेबल रहेगा, देन एंड देन यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मोर. अगर स्टाफ चेंज होता रहा, क्वालिटी भी चेंज होगी, वर्किंग स्टाइल भी चेंज होगी. ऐसा नहीं है कि हमें एक ऐसी रिजिडिटी क्रिएट करनी है कि ये काम आप ही करो. कुछ नया होना चाहिए, स्टाफ भी नया आना चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, नए मेंबर्स भी नए आने चाहिए, लेकिन आपकी जो मेथड है उसमें चेंज ना आना चाहिए. अगर उसमें चेंज आए तो क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी. हम तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, सर्विस प्रोवाइड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो स्टेबल स्टाफ होना ज़रूरी है. This reduces the rate of labor turnover. 11 स्टैंडर्ड से जब आप छोटे थे तब से हम सीखते आ रहे हैं कि लेबर टर्नओवर जैसे बने ऐसे कम रखो. इफ लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस, यही चीज़ है जो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, लेबर टर्नओवर. बाकी आपका टर्नओवर सेल्स का बढ़े, प्रॉफिट का बढ़े, व्हाटएवर कैपिटलाइजेशन बढ़े, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेबर टर्नओवर रेशियो जो है, जो रेट है, वो हमेशा डाउन होना चाहिए. वो ज़्यादा होगा तो समझ लो कि आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हर लेबर आके चला जाए, दैट इज़ नॉट गुड. सो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज. अगर लेबर टर्नओवर कम हुआ, यानी लेबर आपके वहाँ लंबे समय तक रुकेंगे, जॉब करेंगे, काम करेंगे, देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन. लेबर टर्नओवर कम है, उसका मतलब क्या हुआ, लोग जा नहीं रहे हैं, नए लोग आ ही रहे हैं. दैट मीन्स कि योर वर्क इज गुड, your workers are working very efficiently, also they are totally satisfied with the work, their work, and also your policy. So by which organizational objectives and employee objectives can be achieved. ये आपके लिए नया नहीं है, हमने वैसे भी ये 4th या 5th जो हमारा हेनरी फेयल का प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का, उसमें देख चुके हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं तरह हम फुलफिल करना चाहेंगे, तो उसमें हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स डालने पड़ेंगे, यानी पर्सनल टू ऑर्गेनाइजेशनल सेल. सो दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो दैट इज द नाउ एंड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑल्सो इट्स टू प्रोसेस रिलेटेड पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो हमारा मेन पॉइंट है कि स्टाफिंग क्या है. तो वो हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके हमने इंपॉर्टेंस देखा, उसके रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट थे वो देखे, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी देखा. नाउ स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे हम रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे हम लोगों को हमारे यहाँ बुलाएंगे, ये पर्टिकुलर फॉर द वन स्टूडेंट, वन टीचर, वन मैनेजमेंट, वन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट एंड सेक्शन, डिपार्टमेंट, सबके लिए ये नेसेसरी है कि कैसे आपका कोई ना कोई तरीके से रिक्रूटमेंट होता है. तो हमने देखा स्टाफिंग क्या है, तो स्टाफिंग में देखा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, राइट, उनको मेंटेन करो,
उनको उनकी फैसिलिटीज़ को, ये सब यहाँ पर कैसे होता है। तो पहला तो ये है कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। अब ये प्रोसेस है तो आपको मालूम है, इट मस्ट बी इन सीक्वेंस। तो पहला स्टार्ट करते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, contented, experienced, creative, and honest staff is an invaluable asset of business. This one is not new for you. We already discussed this one in the last page. यानी कि whenever we discuss that importance, we discuss this point. But once again, keep in mind this one: contented and experienced staff is very important. They all are invaluable assets. अगर आपके पास पूरी जो वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाला एम्प्लॉई है तो आपके लिए इनवेलेबल एसेट है। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, इनवेलेबल एसेट है। उसका माइंड क्रिएटिव है तो वो भी इनवेलेबल एसेट है। एंड ऑनेस्ट है तो वो भी इनवेलेबल एसेट्स है। सो कीप इन माइंड दिस 4 पॉइंट्स: कंटेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट. If 4 together in one person, oh, you got the opportunity to work with that person. Don't forget he is the diamond. मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चारों के चारों उसके पास हो तो फिर उसको मत जाने दो, राइट। उसका क्या प्रॉब्लम है वो देखो, सिंपल। तो दे आर इनवेलेबल एसेट, कीप इन माइंड दिस थिंग। राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज इम्पोर्टेंट। यानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट विल नॉट स्टॉप, वो चलेगा चलेगा चलेगा। सो फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट इज रिक्वायर्ड। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, किसी को आपके यूनिट में लेना, उसके बाद वो उसका काम शुरू करे वो दूसरी बात है, वो प्रोसेस के अंडर आता है, लेकिन उसको पहले अपने यूनिट में लेने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। एंड दिस रिक्रूटमेंट, राइट, ऑफ स्टाफ शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ suitable qualifications, skills, knowledge and sincerity, and not on the basis of any influence, corruption or nepotism. ये सेंटेंस बहुत मायने रखता है हर यूनिट के लिए, हर इंडस्ट्रीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कीप इन माइंड हाउ, ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ चुका है। हाउ द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज डन, ऑन व्हाट बेसिस द स्टाफ इज सिलेक्टेड। 2 क्वेश्चन मैंने बोले, कई अलग अलग नेचर से वो आ सकते हैं, लेकिन स्टाफ को हम कैसे हमारे यूनिट में ला सकते हैं, तो उसकी सूटेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें स्किल होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द वर्क। वो कोई निपोटिज्म के और से नहीं आना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन वे से नहीं आना चाहिए, फिर किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का रेफरेंस दैट इज गुड, लेकिन इन्फ्लुएंस आने चलो दैट इज नॉट गुड। रेफरेंस दे सकते हो भाई ये अच्छा बंदा है, इसको आप अपने मार्केटिंग में ले सकते हो, राइट, दैट इज द थिंग। ये रेफरेंस है, लेकिन आप इसको ही लो, ये इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं होना चाहिए। करप्शन भी नहीं होना चाहिए पैसा लेके भी, और निपोटिज्म भी नहीं होना चाहिए, जिसको हम सगावत बोलते हैं, कई जगह ये चलता है। सो एंड फॉर दिस अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी अडॉप्टेड। सो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड फिर से आया है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे साइंटिफिक वे से हम सब कुछ काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट है, फिर भी साइंस को हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक वे से हम हमारे यूनिट की जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट, वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, ये कॉमन है, आपको मालूम है, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रिटायर नहीं होने वाला है सॉरी, ऐसा तो है नहीं कि किसी का डेथ नहीं होने वाला है, ऐसा तो है नहीं कोई का प्रमोशन नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे किसी भी तरह प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, नई भर्ती हो, कुछ भी हो, तो रिक्रूटमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई इज कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन न्यू एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन एन एग्जिस्टिंग यूनिट इज एक्सपांडेड, एंड और व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइन्स, डाइज और रिटायर्स। ये दूसरा एक क्वेश्चन आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन द रिक्रूटमेंट इज रिक्वायर्ड, रिक्रूटमेंट नहीं, कब ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है, बंदा नहीं है चला जाता है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन अ प्रॉपर वे, दिस इज़ द मेन थिंग। वो कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, उसके लिए भी आप ये आंसर लिख सकते हो, वाई रिक्रूटमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो वो जब भी आपको नया यूनिट डालोगे आप, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक्सिस्टिंग यूनिट को आपको डेवलप करना है, उसको एक्सपांड करना है, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लोगों की। और साथ में कई बार एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, उसका डेथ हो जाता है, तो इन सब में रिक्रूटमेंट चाहिए। सो अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट?
In the ordinary sense, recruitment is the process of looking for probable employees and making them apply for the job. ये जो एम्प्लॉय है वो ज़रूरत है उनको जॉब की, संभवित जो हम बोल सकते हैं वो प्रॉबेबल एम्प्लॉयज़, उनको अभी जॉब नहीं मिली है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक सिंपल सेंस में, ऑर्डिनरी सेंस में देखें तो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या है, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज लुकिंग फॉर, किसके लिए वो देख रहे हैं, लुकिंग फॉर प्रॉबेबल एम्प्लॉयज़, संभवित एम्प्लॉयज़ जो काम करना चाहते हैं। वो अभी प्रॉबेबल एम्प्लॉयज़ लिए क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रूट नहीं हुए हैं और प्रोसेस में से पास नहीं हो, दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज प्रॉबेबल, संभवित है। सो लुकिंग फॉर प्रॉबेबल एम्प्लॉयज़ एंड देन आफ्टर मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। तो उनको जॉब को लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप बोल सकते हो। और वो कैसे बोलना है आपको, इसके अलग अलग सोर्सेस है, राइट, सिंपल। सो कीप इन माइंड, फिर से एक बार, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रॉबेबल एम्प्लॉयज़ एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। उनको अप्लाई करने के लिए हम बोल सकते हैं। ये एक सिंपल सेंस में हुआ। नाउ ब्रॉडर सेंस में देखें तो इट्स अ प्रोसेस, वन सेकेंड, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग at the right time, acquire means to get, सही समय पर, in the right number, सही मात्रा में, in the right place, सही जगह पर, the persons with the right qualification, सही उसका जो अभ्यास है, क्वालिफिकेशन से, उसके हिसाब से। So everything should be on right basis। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, राइट। आपको कोई किसी का नाम नहीं दिया है, दैट्स व्हाई यू कैन यूज एनीवन। तो ब्रॉडर सेंस अच्छा है कि उनको अक्वायर करो, ये प्रोसेस है, देखो, उनको अक्वायर करो राइट टाइम पर। अब मार्च महीना आ रहा है, फरवरी में आप उसको रिक्रूट नहीं करोगे चलेगा, फिर एक महीने के लिए उसको कुछ काम नहीं दे सकते आप, क्योंकि वैसे भी क्लोजर आने वाला है। उसके बाद आप अप्रैल से करो, सो राइट टाइम। अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा आया है, आपके पास काम है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी आप रिक्रूट नहीं करो तो वो राइट टाइम नहीं है। तो कीप इन माइंड दिस थिंग। सो एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, इन द राइट नंबर्स, सही मात्रा में बोला, राइट प्लेस एंड पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो व्हेन एवर यू वांट टू रिक्रूट, डोंट रिक्रूट इन द टाइम पीरियड वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो रिक्रूटमेंट वहीं करो और उस टाइम पर ही करो जब रिक्वायरमेंट है। आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि स्टाफ की ज़रूरत है, तो ले मत लो, क्योंकि उनकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, है, पैसों की, स्टाफ की। तो फिर उसको, पहला हमने देखा ऊपर मैन पावर प्लानिंग में, कि उसको रिडक्शन ना करना पड़े। तो ओवर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, है। सो एट द राइट टाइम। So these are the some meaning related points of the recruitment. Now let's move to the another point, that is the sources of recruitment, right? So here this is the sources of recruitment, internal and external, right? So here the list of sources of recruitment. So I told you in the initial process of staffing that there is a requirement of the contented, experienced, creative and honest staff. That is requirement, but that is invaluable asset. वो कब बनेगी invaluable asset? जब उसको आप लंबे समय तक के लिए रखोगे, उस टाइम पे। Then after, जब भी एस्टैब्लिशमेंट होता है, फ्रॉम दैट बिगिनिंग ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट दिस फंक्शन स्टार्टेड। सो डिफरेंट सोर्सेस आर देयर, अलग अलग सोर्सेस है प्रोसेस के। सो कैसे हम उसको हमारे बिजनेस में लाएंगे? अगर कोई एक पर्टिकुलर मैनेजर चाहिए तो हाउ वी विल रिक्रूट देम? उनको बाहर से लाएंगे, उनको अंदर से ही लेंगे? मुझे एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए जो सुपरवाइज कर सके, एक जॉबर चाहिए, एक वर्कमैन चाहिए, फॉरमैन चाहिए, सी दिस लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, तो मैं वहाँ उसका यूज़ अच्छी तरीके से कर सकूँ। सो हाउ आई विल रिक्रूट दैट पर्सन? मैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर से कोई ले लूँ, उसको प्रमोट कर दूँ, वो आगे आपको मिलेगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि हाउ आई विल रिक्रूट दिस पर्सन। सी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ इसको हम नहीं लेते, लेकिन एक स्कूल है, स्कूल में 10-12 साल का एक एक्सपीरियंस टीचर है, ही हैज़ एवरी टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस, राइट, और ऐसे कई टीचर्स हैं। आपको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल की ज़रूरत है अपनी स्कूल में। सो सी, एज पर द गवर्नमेंट रूल, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 5 साल से ज़्यादा या 10 साल से ज़्यादा,
5 साल भी चलता है, लेकिन 10 साल के हो तो अच्छा है। तो 10 साल के ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके फर्म में ही 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला टीचर है तो आप उनको प्रमोट करो टीचर से प्रिंसिपल। ये एक हुआ इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन, आपको मालूम है कि अगर ये टीचर को हम ये काम देंगे, ही कैन एबल टू कंप्लीट, लेकिन वो अपना जो कंटेंट है, अपना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो छोड़ना नहीं चाहता, उसको इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आना है। अगर वो प्रिंसिपल बनेंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको टीचिंग में रहना है, उनको पर्टिकुलर एकेडमिक में रहना है। तो फिर आप बाहर से कोई ऐसा बंदा लाओ जो एक्सपीरियंस हो। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई, इससे आपको मालूम पड़ा होगा कि कैसे रिक्रूटमेंट करते। यही चीज़ है इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने जो बोला 10 साल का बंदा है उसको प्रमोट करो, वो इंटरनल है, और बाहर से लाओ वो एक्सटर्नल है। तो कैसे ये करेंगे, हमारे बिजनेस यूनिट की बात है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, द लिस्ट। द फर्स्ट वन, प्रमोशन, ट्रांसफर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज, रिकॉलिंग, रिट्रेंच एम्प्लॉइज, प्रमोशन विद ट्रांसफर, वेटिंग लिस्ट। तो ये 6 है। अब देखो ये सोर्सेज है, उसका प्रोसेस है, ये प्लस माइनस चलेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल है, थ्रू द एडवर्टीजमेंट, बाहर से आप कैसे लाओगे, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो चलते हैं, थ्रू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, थ्रू ट्रेड यूनियंस जो आपके कोई बिजनेस यूनिट के यूनियंस होते हैं, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिफरेंट कंपनीज, रिक्रूटमेंट एट द गेट जैसे हेल्पर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये गेट के ऊपर GIDC में आपने देखा होगा, और मॉडर्न मेथड्स थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज नाउडेज एप्लीकेशंस आर देयर, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, फॉर एग्जांपल वी कैन से naukri.com, जबोंग, इसमें सब कुछ आता है। और कई ऐसी फॉर एग्जांपल monster.com, नाम से ऐसा लगता है भूत होगा, लेकिन वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द नेम्स, ये सब ऐप्स है। आई थिंक उससे ज़्यादा भी है, अभी तो हम शायद जैसे कि sign.com है, कई चीज़ें, कई एप्लीकेशन से कई चीज़ें नई नई अब इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन ये लिस्ट है। इन सभी को जो 13 है, 6 + 17, 6 इंटरनल 7 एक्सटर्नल, इन 13 को मिला के हम जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज है उसको 1 by 1 देखेंगे। आज के लिए हम चलते हैं इंटरनल सोर्सेज में। हियर इट इज। सो फर्स्ट वन, इंटरनल सोर्सेज। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमारा तो एग्जाम ओरिएंटेड काम ज़्यादा होना चाहिए, वही मेरी इच्छा है कि पहले ऐसा होता था कि ये 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता, आपको सब कुछ लिखना पड़ता, लेकिन 2016 के बाद थोड़े चेंजेस आए। तो अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, क्योंकि इसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, डिस्कस इट्स प्रोसेस और डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो कुल 13 सोर्सेज है डियर स्टूडेंट्स। 13 सोर्सेज में से आपको सिर्फ 5 मार्क के लिए एक तो रिक्रूटमेंट का होगा 1 मार्क, तो बाकी के 4 मार्क के लिए 13 लिखना है तो नहीं। नई मेथड के मुझे आपको पूछा जाता है, उस टाइम में लिखा होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिस्कस इट्स इंटरनल सोर्सेज। जो 6 इंटरनल सोर्सेज है आपके नज़र के सामने दिख रहे हैं 5 और नीचे ये 6, तो ये 6 का नाम लिखो और कोई भी 4-5 समझा दो, यानी एक्सप्लेन करो। अच्छा ये एक है, अगर कुछ नहीं बोला है और सिर्फ सोर्सेज बोला है तो 13 कुल 6 + 7 के नाम लिखो, बहुत टाइम नहीं जाता है, और दोनों में से 3 या 2, हमको तो 4 समझाने हैं, 2 तो दोनों में से 2 ले लो, दोनों में से 2 ले लो, दैट्स ऑल, राइट। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, इट्स इंटरनल, इट्स एक्सटर्नल सोर्सेज, द लिस्ट इज देयर, लिखो और उसमें से 2 समझा दो, दैट्स ऑल। तो दोनों काम हो गया। डोंट फॉरगेट कि आप इंटरनल के 4 समझा दिए और एक्सटर्नल के नहीं समझाओगे तो आपको मार्क मिलेगा नहीं, तो सिर्फ 3 ही मार्क मिलेगा, 1 मार्क रिक्रूटमेंट की मीनिंग का और बाकी के 2 मार्क इंटरनल के। तो जो 2 कट हुए वो एक्सटर्नल के कट हुए, याद रखना। ये एक इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ एज अ पेपर चेकर दे रहा हूँ, एज ए एग्जामिनर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो नाउ इंटरनल सोर्सेस, the first one today we'll discuss only 2 or 3. The first one, promotion. Sometimes the word is there in routine life. વાવ, પ્રમોશન થઈ ગયું, રાઈટ, આપણે એવું સાંભળે છે, સારું કહેવાય તમારું તો પ્રમોશન થઈ ગયું, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી વન વે કે પ્રમોશન, દેટ मीन्स કે फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस जो वैकेंट सीट है वो प्लेस पर वही बंदा आएगा जो शायद अपने ही यूनिट का हो। देखते हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ेगा, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि 1 टीचर इज प्रमोटेड टू प्रिंसिपल। सो वेन एवर एनी पोस्ट इज वैकेंट और एनी न्यू पोजिशन इज क्रिएटेड,
प्रमोशन शुड बी गिवन बाय द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज or employee, his ability, honesty, skill, loyalty and also qualification. So when the particular promotion is there, mostly this promotion is from the internal, यानी यही इसीलिए तो हम इसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं, राइट. इसीलिए हमने इसको इंटरनल सोर्स बोला है कि जो पोस्ट वैकेंट है, खाली है, समझ लो कि एक बंदा रिटायर हो गया, उसका डेथ हो गया, उसने जॉब छोड़ दी, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो इसमें से कुछ भी है तो पोस्ट वैकेंट हुई, तो वहाँ पर कौन आएगा, ये एक चीज़. दूसरी कि आपने कोई नई पोजीशन क्रिएट की, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर पर हमने देखा कि रिक्रूटमेंट करना है, तो आपने एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्रूट करना है, आपके पास हर कोई है, तो फिर अपना ही एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है, जो वर्षों से आपके यहाँ काम करता है, उसको ही उस डिपार्टमेंट का हेड बना दो, राइट. तो वो जो पोजीशन नई खड़ी हुई है उसके लिए भी, जो पुरानी पोस्ट थी उसको समझ लो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर की पोस्ट ऑलरेडी है, लेकिन मैनेजर रिटायर हो गया है, मैनेजर ने जॉब छोड़ दी, तो वहाँ पर कौन आएगा, तो वो न्यू पोजीशन नहीं है, वो ओल्ड है, उसको ही रखना है, लेकिन आपको नई पोस्ट खड़ी करनी है तो भी. सो यहाँ पर क्या होगा, प्रमोशन होगा. कौन देगा प्रमोशन, मैनेजमेंट देगा. कौन सा बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो भी यहाँ काम करने वाले हैं वो सभी लोग, राइट, उनकी एबिलिटी, उनकी ऑनेस्टी ध्यान पर ली जाएगी, उनकी स्किल, लॉयल्टी और उनका क्वालिफिकेशन भी ध्यान पर लिया जाएगा. ये सब मिला के उनको प्रमोशन मिलेगा. इससे क्या बेनिफिट होगा, एक मार्क का क्वेश्चन. प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉय और प्रमोशन ऑफ दैट पर्सन विल बूस्ट देयर मोरल एंड लॉयल्टी. जो भी उसकी एबिलिटी है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, क्वालिफिकेशन चलो नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्किल शायद बढ़ जाए, तो उसका मोरल भी बढ़ेगा, उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी. प्रमोशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज सैलरीज, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज द मेन थिंग एंड इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ प्रमोशन, तो प्रमोशन में आप लिख सकते हो कि प्रमोशन मोस्टली रिजल्ट्स और प्रमोशन इज ऑलवेज इन द सेम यूनिट, और वी कैन से इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क. और उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सैलरी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी. आप जहाँ पर हो उससे ज़्यादा आपको कुछ देना पड़ेगा, काम में भी, राइट, आपका सैलरी भी बढ़ेगा. याद रखो प्रमोशन में ये बेनिफिट है. ओके, ये एक का क्वेश्चन आता है तो याद रखो. नाउ द ट्रांसफर. इफ देयर इज एन शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी डिपार्टमेंट, it can be rectified by transferring to it the surplus employees of another department, keeping in mind their qualifications. तो ये ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस सेम, राइट. तो यहाँ पर क्या होगी, एक डिपार्टमेंट में शायद कोई ज़्यादा लोग है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में आप डाल सकते हो. जहाँ पर शॉर्टेज है वहाँ पर, जहाँ एक्सेस है वहाँ से डालो. तो फिर से एक बार, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय कोई भी डिपार्टमेंट में हो, सो वो कैसे रेक्टिफाइड किया जाता है, ट्रांसफरिंग. वहाँ किसी और डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करो. कहाँ से जाएंगे, तो जहाँ पर एक्सेस है, सरप्लस है, वहाँ से. तो इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़, फाइनेंस डिपार्टमेंट चलो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो एक स्पेशलाइज वर्क से चलता है, लेकिन चलो समझ लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो यूनिट है, स्टोर और पैकिंग. अगर पैकिंग डिपार्टमेंट में अभी काम कम है, राइट, अगर कुछ काम कम होता है और स्टोर में डिमांड है, स्टोर में अगर किसी की ज़रूरत है, तो आप पैकिंग डिपार्टमेंट से स्टोर में ट्रांसफ़र कर सकते हो. यानी जो कम से कम लोग होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करोगे तो प्रॉब्लम होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भी शॉर्टेज हो जाएगी. लेकिन जो शॉर्टेज वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट पर है, वो डिपार्टमेंट में अनदर डिपार्टमेंट में एक्सेस या सरप्लस है, वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. कीपिंग इन माइंड दिस थिंग. अच्छा, also whenever the transfer is done, right, from one department to another department, keeping in mind their qualifications. कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं होता है. शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉइज आर फुलफिल्ड विद द एक्सेस ऑफ द एम्प्लॉइज, बट समटाइम इट हैपन्स, राइट, कि उनकी क्वालिफिकेशन शायद मैच ना हो. So in this way, shortage of employee can be rectified. So if 2 mark question is there, how the shortage is rectified with this particular process. So we completed the transfer. First one was promotion and transfer. So difference याद रखना, दोनों में promotion
इसीलिए डिफरेंस याद रखने की ज़रूरत है कि कई बार ऐसा होता है प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। तो प्रमोशन मीन्स जो वैकेंट पोस्ट है या न्यू पोस्ट क्रिएट करते हो, दैट पोस्ट विल बी फिलअप, जो वैकेंट सीट है वो फिलअप मैनेजमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय दोज आर वर्किंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, उनके काम के हिसाब से, उनकी एबिलिटी, ऑनेस्टी, स्किल, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और व्हेन द पर्सन विल गेट दिस टाइप ऑफ द प्रमोशन, हिज सैलरी विल इंक्रीज, ऑथोरिटी पावर, दैट इज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर 4, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्रीज ऑल्सो इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर कंपनी, स्टेटस विल इंक्रीज। और ट्रांसफर में होता है जहाँ पर शॉर्टेज होती है स्टाफ की, और वहाँ पर कहाँ से पर्टिकुलर स्टाफ आएगा, जहाँ पर एक्सेस है, सरप्लस है, वहाँ पर। लेकिन दोनों में मेंटेन रहना जरूरी है। Okay, so that shortage will be clarified or we can say rectified with this type of the transfer. तो ये 2 पॉइंट है। तीसरा देख लेते हैं, थर्ड वन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। Whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post. ये अभी एक बहुत अच्छा, और मैं बोलना चाहूँ कि एक ज़रूरी जो सोर्स है वो बन चुका है, क्योंकि वाई यू आर रिक्रूटिंग दैट पर्सन to him or to particular person, maybe he is not particularly known person, right? स्पेसिफिक हम हमारे काम की बात करें तो कोई ऐसे फील्ड में हम किसी को लाना चाहते हैं जहाँ पर उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, चलो उसको हम समझा देंगे, लेकिन वो अननोन है। ओके, सो कई बार हमारा नोन पर्सन होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें से किसी को रिक्रूट ना करें। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मैनेजर इज देयर, तो फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट में ले लो, हमारा चलो अकाउंट का डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट का जो भी मैनेजर है उसके अंडर में अकाउंटेंट है, उसमें एक जूनियर क्लार्क लेना है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसका कोई पहचान वाला उसी को क्यों ना ले, वो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो सिंपल जो वैकेंसीज है उस पर हम ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, राइट, उनको रिकमेंड करते हैं कि आपके रिकमेंडेशन वाले कोई क्वालिफाइड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो तो उनको हम यहाँ ले लें। सो रिक्रूटमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस फ्रॉम देम। तो वन प्रोसेस इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एप्लीकेशंस फ्रॉम देम। डायरेक्ट आप किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते, कीप इन माइंड दिस थिंग। ओके, अगर आप शॉप की बात करें तो चलेगा, लेकिन जब आप कंपनी लेवल पर आते हो, टेक हम अपनी फॉर्मेलिटीज, राइट, तो थोड़ा बहुत उसके पास लिखवाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस, एंड दिस हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज दोज आर वर्किंग। जिसका बंदा पहचान वाला आएगा उसका मोरल भी बढ़ेगा, चलो मारो मानस आयो, मारो फ्रेंड आयो, कि हमारा रिलेटिव्स ने बहुत जॉब पर ली तो, राइट, एंड ऑल्सो दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिकॉज सी 15 years, 16 years, 20 years completed in a particular unit and you are not getting any chance in the particular process, and you will get immediately chance in the recruitment process, that is a good thing. अब जो इसके बाद के 3 पॉइंट हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देन एंड देन आफ्टर दैट वन यू विल गेट द बोर्ड वर्क रिलेटेड different chapters and also the board work related videos. So that is the end of the particular today's session. It is continue, यानी कि ये इंटरनल सोर्सेज चालू है। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद द 4th इंटरनल सोर्स। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा रिकॉलिंग रिट्रेंच एम्प्लॉइज। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।